ओ
Trying to conceive but unsuccessful? Have been advised IVF or IUI? Want a healthy and intelligent baby? Join us to fulfill your dream of becoming parents. A free expert guidance program on holistic IVF and IUI, scientific and spiritual approach, golden steps for successful IVF and IUI, daily online live sessions, medical doctors and spiritual teachers on decoding journey of IVF, tips for successful IVF, stress management, emotional well-being, fertility boosting diet, exercise and pranayam, counseling, meditation, sleep management, art therapy, music therapy, instrumental music meditation, value stories, Gita Gyan and scriptures, Ayurvedic and naturopathy detoxification, Garbhodhan. Starting from 1st November, meet us virtually from Monday to Saturday between 8 to 9 pm and Sunday between 11 am to 12 pm. Live on Zoom and YouTube channel Holistic IVF. Zoom meeting ID 919 519 84746. Password Happiness. For more details, call us on 9158 927 927 or 98206 16509 or 9833 801 570. You can mail us on holisticivf@gmail.com. Visit us on www.divinegarbhasanskar.in. Subscribe to our YouTube channel, Holistic IVF. Organizers, Medical Wing Brahmakumaris, Divine Sanskar Research Foundation. Om Shanti. Welcome to all in our today's session. Holistic IVF and IUI, a scientific and spiritual approach में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टिप्स टू अवॉइड IVF फेल्यूर और हम सभी के बीच हमारे गाइड उपस्थित है बीके डॉक्टर सुनीता जी। Before we are going to start our session, I would love to introduce Dr. Sunita ji. She is a MBBS, DGO, DNP, DFP, PGDHA, DPH, and fellow in infertility. She is practicing OBGYN with a special interest in infertility at Haveri since 2000. She did her UG at Miraj Medical College and PG at JNMC, Belgaum. Now she is running a 60-bedded hospital and IVF center at Haveri. She is a member of medical wing of Brahma Kumaris since 2009 and regularly teaching meditation, especially to patients since 8 years. She is conducting various programs for awareness on Garbha Sanskar, de-addiction, cancer, stress management, and infertility in association with BKs and Rotary Club. So, हमारे बीच आज डॉक्टर सुनीता जी उपस्थित है। मैं बहुत बहुत दिल से उनका सभी बहुत करना चाहूंगी और आज का हमारा जो सेशन टिप्स IVF फेल्यूर, तो आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। और आज के सेशन में आप जो भी हमें IVF के बारे में अवेयरनेस देंगे, हम अच्छे से उसे समझेंगे। ओवर टू यू मैम। मैं आपको को होस्ट बना रही हूँ, आप अपनी स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं और आप अनम्यूट भी कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी। Am I audible? Am I audible? Yes ma'am, sure. एक मिनट।
Can you see my screen? Yes, ma'am. We can. Hello. Yes, ma'am. We can hear you and we can see the screen also. Okay. Om Shanti. Om Shanti. Good evening, everybody. First of all, I would like to thank Shubha ma'am और स्वामी भाई और होलिस्टिक IUF और IUI टीम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, और हमारी ब्यूटीफुल ऑडियंस जो आज की अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के इसके लिए आई, इसलिए मैं आपका बहुत दिल से धन्यवाद कहती हूँ। टुडेज टॉपिक इज टिप्स टू अवॉइड IVF फेल्यूर. I will try to make it as simple as possible and crisp and to the point, जो आपके लिए यूजफुल हो. जितना सिंपल बना सके उतना बनाने की कोशिश करूंगी. ओके, विल स्टार्ट द लेक्चर. इनफर्टिलिटी क्या होती है? इनफर्टिलिटी कोई भी कपल शादी के बाद में अगर 1 साल के अंदर कंसीव नहीं हो पाता तब हम उनको इनफर्टाइल कहते हैं. लेकिन यही अगर वुमन की एज 35 से ज्यादा है तो हम 6 महीने में अगर वो कंसीव नहीं होती है तो हम उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं. आप सोचते होंगे पहले तो इतना इनफर्टिलिटी नहीं था, आजकल के जमाने में इतना इनफर्टिलिटी पेशेंट्स क्यों हैं? तो ऐसे बेसिकली इनफर्टिलिटी इज इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ वुमन्स इंक्रीज्ड एज एट द टाइम ऑफ मैरिज. हमारे दादा दादी के टाइम पे लड़कियों की शादी 17-18 साल में शादी हो जाती थी. अभी क्या हो रहा है, मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से लड़कियों की शादी के टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल एज ज्यादा रहती है. उसके बाद शादी होने के बाद में दे विल बी मोर करियर ओरिएंटेड, वांट टू डू सम परस्यू सम करियर और दे वांट टू सेटल इन लाइफ एंड दे विल बी पोस्टपोनिंग प्रेगनेंसी. वो सोचते हैं कि मुझे पहले ये होने दो, मेरा सेटल होने दो, मेरा घर बन जाने दो, मुझे मेरे एजुकेशन खत्म होने जाने दो, देन आई विल हैव प्रेगनेंसी. सो वो प्रेगनेंसी पोस्टपोन करते जाते हैं. दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन. तो पोस्टपोन करने की वजह से क्या होता है, जो छोटा प्रॉब्लम इनिशियली व्हिच कुड हैव बीन सॉल्व्ड इनिशियली इजीली became a complex problem afterwards. Thirdly, आजकल की लाइफस्टाइल इज मोर स्ट्रेसफुल, तो वो स्ट्रेस इज आल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर फॉर द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी. एंड फिर ओबेसिटी, हम वेस्टर्न लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं आजकल. इफ यू सी जनरल पॉपुलेशन एटलीस्ट 20 to 25% पीपल आर ओबेज. सो ये एक मेन रीजन है. सो इंक्रीज एज एट द टाइम ऑफ मैरिज, postponing pregnancy, stress, obesity, these are the main factors for rise of infertility. अगर अभी ये जनरल पॉपुलेशन है, अगर हम इनफर्टिलिटी देखते हैं तो इट इज अराउंड 20 to 25%. मींस इफ यू अगर आप एक 5 कपल देखते हो तो एवरी 5th कपल 1 कपल इज इनफर्टाइल. तो हमारा लेक्चर का फ्लो ऐसा रहेगा. हम लोग पहले जानेंगे शॉर्ट में. आई विल जस्ट टॉक टू यू अबाउट व्हाट इज IUI IVF. IUI प्रोसेस क्या होता है, IVF प्रोसेस क्या रहता है, डॉक्टर को क्या चैलेंजेस रहते हैं ड्यूरिंग IUI IVF, और पेशेंट को क्या चैलेंजेस है और हम उसको कैसे ओवरकम करेंगे. ठीक है. सो IUI प्रोसेस क्या, IUI प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि सीमेन प्रिपरेशन करके आउटसाइड सीमेन का प्रिपरेशन लेबोरेटरी में किया जाता है. उसके बाद में उसको प्रोसेसिंग करके यूट्रस के अंदर डाला जाता है. सो इट इज कॉल्ड एज इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन. यूट्रस के अंदर इंसेमिनेट किया जाता है सीमेन, वेदर इट इज ए हस्बैंड और डोनर. इट इज कॉल्ड एज IUI. इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, OPD प्रोसीजर. ठीक है. दूसरा है IVF. IVF मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. विट्रो मीन्स आउटसाइड, फर्टिलाइजेशन बाहर किया जाता है. पेट्री डिश में एग मतलब स्त्री बीज और स्पर्म जिसका फर्टिलाइज बाहर किया जाता है, इसलिए उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है. शॉर्ट में आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू कि व्हाट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कैसे रहती है औरत की फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यूट्रस, 2 बाजू में 2 ट्यूब रहते हैं, फेलोपियन ट्यूब जिसको कहा जाता है. 2 ओवरी रहते हैं जिसको अंडाशय कहते हैं. फिर सर्विक्स रहता है, बच्चेदानी का नीचे का भाग जिसको सर्विक्स कहते हैं. फिर वजाइना नीचे रहता है. तो IUI में क्या किया जाता है, IUI में फर्स्ट सुपर ओव्यूलेट किया जाता है लेडी को. मतलब उनको हम लोग ज्यादा अंडे बनने के लिए, एग्स ज्यादा बनने के लिए गोलियां दिए जाते हैं. मतलब एटलीस्ट 2 to 3 फॉलिकल्स वो हमारा टारगेट रहता है. टैबलेट दी जाती है और साइमल्टेनियसली उसको मॉनिटरिंग को बुलाया जाता है.
एवरी थर्ड डे फोर्थ डे वी कॉल हर फॉर मॉनिटरिंग। फिर जैसा जब उसका एग का साइज हमको अप्रोक्सीमेटली 18 to 20 साइज चाहिए, जब बन जाता है तब उसको रप्चर के लिए इंजेक्शन दिया जाता है। और IUI टाइम कहते हैं 36 to 40 आवर्स के बाद में उनको IUI के लिए बुलाया जाता है, और बाद में सीमेन प्रिपरेशन किया जाता है और वो अंदर इंसेमिनेट किया जाता है। आप 1 2 3 4 नंबर से देख सकते हो, इंसेमिनेशन अंदर किया जाता है। Same thing here also, it is washed outside and then it is injected inside the uterine cavity. मोटा मोटी में अगर हम देखते हैं कि what are the causes of infertility, roughly it is like 35% cases it is a male factor, 35% female factor, और बाकी remaining it can be both, और sometimes 10% cases it unexplained, मतलब मेल और फीमेल दोनों में everything will be normal but still they will not be able to conceive, the factor which we don't know sometimes, so it is called as unexplained subfertility हम लोग उसको कहते हैं। Sometimes it is absolutely very not possible to exactly find out what is the reason of infertility, that is unexplained infertility. If you see from the screen, causes of oligospermia, oligospermia means sperm count कम है, कम होने के बहुत सारे reasons हैं, but practically speaking from my experience most common reason is like a tobacco chewing, गुटखा जिसमें निकोटिन होता है जिसकी वजह से sperm count कम हो जाता है, और अल्कोहल, और वेरिकोसील, वेरिकोसील मतलब वहाँ के वेसल्स, जेनेटल्स के आजू बाजू के वेसल्स उनके थोड़ा डायलेट हो जाते हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है, स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो दीज आर द मेन रीजंस फॉर द लो स्पर्म काउंट। रफली सिंपल वे में आपको जस्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल पहले क्या होती है, आई विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन। रेड में दिखाया वाला 1 to 7 दैट इज मेंस्ट्रुएशन, उसके बाद में एग बनना चालू होता है जिसको हम प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं, वो 8 to 11 जिसमें एग बनता है, फिर बाद में एग रिलीज होता है जिसको ओव्यूलेशन कहा जाता है, वो 12 to 17 में बताया गया है, बाद में 18 to 25 जिसको हम सिक्रेटरी फेज कहते हैं, बाद में अगर फर्टिलाइज हुआ तो वो एग, वो एम्ब्रियो यूट्रस में जाके चिपकता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उनको बाद में पीरियड आ जाता है। सो इट इज अ रफली जस्ट साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल मंथली रहता है, अगर उसको फर्टिलाइजेशन नहीं होता है देन शी विल ब्लीड अगेन, सो दिस साइकिल कंटिन्यूज एवरी मंथ। कॉमनली IVF के क्या क्या रीजंस रहते हैं, देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर डूइंग IVF, बट कॉमनली जैसा मेन इज द ट्यूबल फैक्टर। इफ अगर ट्यूबल फैक्टर जैसा ट्यूब ब्लॉक है, सिंगल हो या दोनों ट्यूब ब्लॉक है, और ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन जैसे PCOD हुआ, या पुअर ओवेरियन रिजर्व हुआ, एंडोमेट्रियोसिस, यूट्रस के कोई फैक्टर है, और या मेल फैक्टर जिसमें स्पर्म काउंट काफी कम है, सीवियर ऑलिगोस अस्टेनोस्पर्मिया कम काउंट कम है, तो फिर हम लोग उनमें IVF एडवाइस करते हैं। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी इज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर IVF। तो IVF के स्टेप्स क्या रहते हैं, जस्ट शॉर्ट में आपको मैं समझाती हूँ। इसमें पहले इनिशियल इवैल्यूएशन होता है कपल का, फिर सेपरेशन होता है साइकिल का, नेचुरल साइकिल का, फिर ओवरी को स्टिमुलेट किया जाता है एग बनने के लिए, फिर कलेक्शन ऑफ oocytes, कलेक्शन ऑफ स्पर्म्स, और बाहर फर्टिलाइजेशन किया जाता है, फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। आप देख सकते हो पिक्टोरियल रूप में फॉर्म में नंबर 1 पहले औरत के शरीर में ज्यादा एग बनने के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं जिसको हम लोग ओवेरियन स्टिमुलेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा एग बनाए जाते हैं। बाद में एग बनने के बाद नंबर 2 एग पिकअप, मतलब विद शॉर्ट एनेस्थेसिया, नीडल डाल के सोनोग्राफी के गाइडेंस के थ्रू वो एग को पिकअप किया जाता है, निकाला जाता है, और बाद में थर्ड स्टेप यू कैन सी सीमेन का प्रिपरेशन किया जाता है आउटसाइड, और नंबर 4 स्टेज में एक पेट्री डिश में दोनों को, स्पर्म को और एग को रखा जाता है फर्टिलाइजेशन, स्पॉन्टेनियस फर्टिलाइजेशन के लिए बाजू बाजू में रखते दोनों गैमेट को, जिसको IVF बोलते हैं। और समटाइम्स इफ काउंट इज वेरी वेरी लो देन वी जस्ट डायरेक्टली डू ICSI, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म को पकड़ के डायरेक्टली यूट्रस एग के अंदर डाला जाता है, उसको ICSI कहते हैं। देन अगर आफ्टर फर्टिलाइजेशन देन हम लोग फर्टिलाइजेशन चेक करते हैं, और जैसे फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद में 2PM स्टेजिंग, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, ब्लास्टो, उसको कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखा जाता है, और बाद में
उस एम्ब्रियो को इंजेक्ट किया जाता है, जिसको एम्ब्रियो ट्रांसफर कहा जाता है। डिपेंड्स, इट मे बी डे 3 और डे 5 कितने नंबर ऑफ एम्ब्रियो बने हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, पेशेंट की एज क्या है, एंडोमेट्रियम क्या है, हार्मोन लेवल्स क्या है, ये सब चीज के ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं कि इधर डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है कि डे 5 करना है। जैसे ब्लड टेस्ट दोनों कपल का इनिशियली ब्लड टेस्ट किया जाता है लेडीज में। अपार्ट फ्रॉम हार्मोन टेस्ट हम लोग आजकल थायराइड टेस्ट, प्रोलैक्टिन और HbA1c, डायबिटीज हमको देखना पड़ता है, क्योंकि आजकल लेडीज क्वाइट ओबेस की तरफ है। सो वी हैव टू रूल आउट डायबिटीज फ्रॉम द बिगिनिंग। अपार्ट फ्रॉम द रूटीन टेस्ट, फिर सीमेन टेस्ट किया जाता है, HSG। दिस इज जस्ट जनरल टेस्ट आई एम टेलिंग इन बोथ IUI एंड IVF। ट्रांसवेजनल सोनोग्राफी एंड हिस्ट्रोस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपी मतलब स्कोप डाल के यूट्रस के अंदर देखा जाता है, उसको हिस्टेरोस्कोपी कहा जाता है। जैसा मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया, ओवेन स्टिमुलेशन, जैसे ज्यादा एग बनने के लिए ओवरी को स्टिमुलेट किया जाता है इंजेक्शन के थ्रू, और मॉनिटर स्कैनिंग किया जाता है। टोटली उसको इंजेक्शन अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 डेज इंजेक्शन दिया जाता है, और इसके अंदर अलग अलग नमूने के इंजेक्शन यूज किए जाते हैं। मे बी इट इज यूरिनरी इंजेक्शन और रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शन दिए जाते हैं। 10 से 12 दिन यूजुअली स्टिमुलेशन किया जाता है, और बाद में एग बनने के बाद में सोनोग्राफी के गाइडेंस के थ्रू वजाना में से नीडल डाल के इनको पिकअप किया जाता है, उनको निकाला जाता है। और कलेक्ट एग निकलने के बाद में उसको हम लोग देखते हैं कि हाउ इज द क्वालिटी रिट्रीव होने के बाद में, वेदर इट इज इमैच्योर और मैच्योर, और उसके हिसाब से उसको स्ट्रिपिंग किया जाता है, उसको कल्चर मीडिया में रखा जाता है ग्रोथ के लिए। तब तक बाय द टाइम सीमेन कलेक्शन के लिए वी एडवाइज द हस्बैंड फॉर द सीमेन कलेक्शन, एंड वी सी द क्वालिटी ऑफ द स्पर्म एंड प्रिपरेशन किया जाता है। और बाद में डिपेंडिंग अपॉन द काउंट वी डिसाइड वेदर टू डू IVF और ICSI। तो उसको ICSI में, जैसा आई हैव टोल्ड यू, ICSI मींस इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। एग को एक फोर्सेप से पकड़ा जाता है और दूसरे नीडल से, जिसमें स्पर्म इंजेक्ट किया जाता है, उसके थ्रू एवरीथिंग इज अंडर माइक्रोस्कोप। और बाद में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट के स्टेजेस माइक्रोस्कोप में ऐसे दिखते हैं। डे 1 में ऐसा दिखता है, 2 सेल स्टेज, बाद में 2 सेल, 4 सेल, डे 2, डे 3, डे 5। डे 5 का वी कॉल इट एज अ ब्लास्टोसिस्ट। तो अगर कोई पेशेंट का डे 5 तक ब्लास्टो बन गया, मीन्स इट इज ऑफ गुड क्वालिटी। सो आवर एम इज टू प्रिपेयर द ब्लास्टो, बिकॉज चांसेस ऑफ इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी होने का चांस ब्लास्टो में ज्यादा रहता है। अगर डे 3 तक सो मेनी टाइम्स इफ नंबर ऑफ एग्स आर लेस, नंबर ऑफ एम्ब्रियोज आर लेस, तो फिर हम लोग कभी कभी डे 5 तक उनको रिस्की होता है कि डे 5 तक उसको ग्रो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर वी हैव एडिक्वेट नंबर ऑफ एम्ब्रियोज तब हम ग्रो कर देते हैं, क्योंकि काफी एम्ब्रियो डे 3 के बाद में अरेस्ट हो जाता है। इफ पैटर्नल, स्पेशली इफ पैटर्नल जीनोम में प्रॉब्लम है, तो वो डे 3 के बाद में अरेस्ट हो जाता है, डे 5 तक उनकी ग्रो नहीं हो पाती है। लेकिन अगर डे 5 तक वो एम्ब्रियो ग्रो हुआ, गुड क्वालिटी एम्ब्रियो है, ब्लास्टो है, so chances of it is of good embryo and chances of fertilization, implantation will be very very high. So बाद में इसको एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है थ्रू अ स्मॉल कैथेटर अंडर सोनोग्राफी गाइडेंस। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन IVF is the embryo transfer. This is the most important step. It should be very easy and simple. It should be very smooth. This is the main step for the main important step I will call for the success of the IVF. तो एम्ब्रियो ट्रांसफर, जैसा मैं आपको जस्ट पिक्चरल रूप में दिखा रही हूँ, एक छोटा पतला सा कैथेटर लेके उसके थ्रू अंडर सोनोग्राफी गाइडेंस एम्ब्रियो को रखा जाता है। तो IVF के टाइम क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, हम लोग एक एक को डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट आई विल जस्ट टेल यू क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं डॉक्टर को, स्पेशली डॉक्टर को। जैसे एज ऑफ द पेशेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। कोई भी IVF सक्सेस का मेन रीजन इज द एज, इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, एज ऑफ द पेशेंट। AMH मीन्स एंटीमुलेरियन हार्मोन ओवेरियन रिजर्व। ये ब्लड टेस्ट है जो हमको दिखाता है कि औरत के शरीर में कितने एग्स है, तो उसकी वजह से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कितना उनको डोज देना है, क्या रिस्पॉन्स आ सकता है, प्रेडिक्शन हम लोग सोच सकते हैं। सो दिस इज द मेन फैक्टर फॉर द एग। जितना एग है, उसके पास कितना एग है, हमको ये ब्लड टेस्ट से समझ में आता है। फिर हिस्ट्रोस्कोपी, हम डिटेल में एक एक चीज को देखेंगे। चैलेंजेस, वेट, स्पेशली ओबेस पेशेंट अगर है तो हाइपर स्टिमुलेशन, हाइपो स्टिमुलेशन। हाइपो मतलब कम स्टिमुलेट हो जाता है कभी कभी, इमेच्योर
और मैच्योर एक पुअर क्वालिटी एम्ब्रियो और डिफिकल्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो प्रेडिक्टिव फैक्टर्स क्या रहते हैं आईवीएफ के लिए, डॉक्टर को क्या चैलेंज रहता है? फर्स्ट इज एज आई टोल्ड यू, एज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि औरत के शरीर में जैसा टाइम बढ़ता है, एज ज्यादा होती जाती है, वैसे नंबर ऑफ एग्स कम होते जाते हैं, उसका ओवरियन रिजर्व कम होता जाता है। तो जितना एग कम है तो रिट्रीवल के टाइम भी कम एग आते हैं, नंबर ऑफ एग्स आर अवेलेबल लेस, सो फर्टिलाइजेशन विल बी लेस, एंड सो हमारे पास एम्ब्रियोज कम रह जाते हैं ट्रांसफर के लिए। तो एज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा एज बढ़ती जाती है वैसे क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियो आल्सो डिक्रीजेस, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द एज। सो age is inversely proportional to the success of the IVF. You can see from this picture कि जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे एग्स कम हो जाते हैं। In this slide you can see at the time of birth there are 7 millions. 7 millions means 70 lakhs eggs, मतलब कोई लड़की पैदा होती है बच्चा, उसमें 70 lakhs एग रहते हैं। वही जब वो मैच्योर होती है, प्यूबर्टी रीच होती है, तो ओनली 4 lakhs, 70 लाख से 4 लाख खाली बच जाते हैं, और वही मेनोपॉज के टाइम खत्म हो जाते हैं। फुल लाइफ टाइम में आउट ऑफ 4 लाख ओनली 400 to 500 विल ओव्यूलेट। ठीक है, भगवान ने इतना सरप्लस हमको दिया है, उसमें से खाली 400 और 500 हमको यूज होता है। और बाकी इन दिस स्लाइड, इन द सेम स्लाइड यू कैन सी लाइक जैसे एज बढ़ती है वैसे नंबर ऑफ एग्स कम होते जाते हैं। AMH लेवल अल्सो डिक्रीज होता है। AMH मतलब जैसे मैंने बताया कि ओवेरियन रिजर्व, कितना ओवरी में एग्स है, ये ब्लड टेस्ट हमको दिखाता है। ये AMH लेवल नॉर्मली 2 to 4 नॉर्मल रहता है। तो आप ये स्लाइड में देख सकते हैं एट द एज ऑफ एक्स एक्सिस पे एज है 25 एज के टाइम कितना AMH है, सपोज 5 है, वही एट द एज ऑफ 35 इट बिकम्स 2, और 35 से 40 it decreases drastically. After 35 it decreases drastically. So AMH लेवल कम होता जाता है, तो उसकी वजह से प्रोग्नोसिस भी चेंज होता है। आप इस स्लाइड में देख सकते हो, अगर लेस देन 35 वुमन की एज है तो IVF सक्सेस यूजुअली अराउंड रफली, सपोज इफ इट इज 55%, वही उसकी एज अगर मोर देन 40 हो गई तो इट डिक्रीजेस फ्रॉम 55 to 8.2%. So much of decrease. So age is very important, especially after 35. It drop is sudden drop, 35 to 40 सडन ड्रॉप होता है, तो इसलिए वो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट वो टाइम पे वेस्ट नहीं करना चाहिए, यूज दैट टाइम प्रॉपरली। एवरी टाइम बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकिंग ऑन द फीमेल, सो टाइम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दूसरा चैलेंज होता है हिस्ट्रोस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपी मतलब यूट्रस के अंदर स्कोप डाल के देखा जाता है, अंदर की परत देखी जाती है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि स्पेशली वी वांट टू फाइंड आउट अगर कोई सेप्टम है, पॉलिप है, if any foreign bodies, any granulations, any infection कुछ है तो हमको देखना पड़ता है। अगर वो कुछ है तो उसका पहले से ही ट्रीटमेंट करके देन ओनली वी डू एम्ब्रियो ट्रांसफर। जैसे कोई खेत में कोई फार्मर है, अगर उसको बीज बोने के पहले वो खेत पहले बराबर करता है, सभी उसको फर्टाइल बनाता है, और जब वो उसमें खाद डालेगा, पानी डालेगा, सब वो सही है, तभी उसमें बीज डालता है। ऐसा ही सेम थिंग, लाइक फर्स्ट वी सी विद द स्कोप हाउ इज द एंडोमेट्रियम, एंड उसके हिसाब से व्हेन एवरीथिंग इज फाइन, इफ एनी पॉलिप, एनी जैसा बोलते हैं ना कोई साइड में कुछ कचरा वगैरह है तो निकालते हैं, वैसा कुछ है तो हम लोग निकालते हैं। यूट्रन कैविटी एडिक्वेट है क्या, कुछ इन्फेक्शन है क्या, वो सब उसको ट्रीट करके देन वी विल डू एम्ब्रियो ट्रांसफर। सेकंडली ड्यूरिंग हिस्ट्रोस्कोपी हम लोग सर्वाइकल कैनाल का कैसा है देखते हैं। इट मेन पर्पज इज आल्सो फॉर द डायलिटेशन ऑफ द सर्वाइकल कैनाल, सो दैट एम्ब्रियो ट्रांसफर विल बी इजी। कोई पेशेंट में पिन पॉइंट ऑस रहता है, डिफिकल्ट फाइब्रोसिस रहता है सर्वाइकल कैनाल में, सो एम्ब्रियो ट्रांसफर विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो हिस्ट्रोस्कोपी के टाइम डायलिटिस सर्विस कैसा है, सर्वाइकल कैनाल कैसी है, विल हैव आइडिया, एंड इफ इट इज स्मॉल देन वी कैन डायलेट, दैट इज आल्सो एडवांटेज ड्यूरिंग स्कोपी। फिर प्रेगनेंसी हिस्ट्रोस्कोपी के प्रेगनेंसी जैसे आप बोलते खाली एंड्रोमेट्री में यूट्रस में अंदर खाली एम्ब्रियो डालने से प्रेगनेंसी होती है। इट इज नॉट लाइक दैट बिकॉज इट इज अ वेरी माइन्यूट प्रोसेस। यू कैन सी फ्रॉम द बिजी स्लाइड देयर आर सो मेनी माइक्रोस्कोपिक हार्मोन्स विल बी इंटरप्लेइंग in the uterus between the embryo and the endometrium। छोटे छोटे सिग्नल्स आते हैं,
so many microscopic hormones will be released. There will be dialogue between the embryo and the endometrium, which is important for the implantation, मतलब pregnancy के लिए important है. तो बच्चा एम्ब्रियो डाल दिया तो प्रेगनेंसी होएगी ऐसे जरूरी नहीं, बिकॉज देयर आर सो मेनी माइन्यूट थिंग्स, सो मेनी फैक्टर्स आर इन्वॉल्व. जैसे मोबाइल में 10 नंबर, एक भी नंबर अगर सही नहीं है तो मोबाइल आपका नंबर नहीं जाएगा. सेम थिंग लाइक फॉर द फर्टिलाइजेशन, इवन इफ इट इज फर्टिलाइज्ड, देयर आर सो मेनी माइक्रोस्कोपिक थिंग्स आर देयर. इवन इफ वन इज मिसिंग, देयर विल नॉट बी प्रेगनेंसी. सो इट इज सटल, इट इज अ वेरी माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस. जैसा जैसा इट इज लाइक, आई विल कंपेयर इट लाइक मैथ्स. कोई कोई लोगों के लिए मैथ्स कैसा है, बहुत सिंपल है. जिसको मैथ्स अंडरस्टैंड हो गया उसको बहुत सिंपल है, और जिसको मैथ्स नहीं समझता उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है. इट इज लाइक दैट. फिर चैलेंज आता है ओबेसिटी, ओवरवेट. आजकल एज आई हैव टोल्ड 20 to 25% पीपल आर लाइक ओबेस, ओवरवेट. सो उसकी वजह से उनके हार्मोनल लेवल में इम्बैलेंस रहता है, पीसीओडी रहेगा, एंड दूसरे इंसुलिन रेजिस्टेंस रहेगा, डायबिटीज रहेगा, एसोसिएटेड ब्लड प्रेशर. So chances of complications will be high because of obesity. So overweight is also a challenge for the doctor, and especially if it is a morbid obesity, बहुत ज़्यादा weight है, more than 90 and all, it will be like problematic not only during pregnancy but after during fertilization, but afterwards during pregnancy period, whole 9-month period, it will be like a challenge for both of them. फिर हाइपर स्टिमुलेशन, कभी कभी आईवीएफ में जैसा स्टिमुलेशन किया जाता है इंजेक्शंस देके, तो कोई कोई लोगों, इफ इट स्पेशली इफ पेशेंट इज अ पीसीओडी, उनको हाइपर स्टिमुलेशन होने का चांस ज्यादा रहता है. हाइपर स्टिमुलेशन मतलब ओएचएसएस, मतलब पीसीओडी में जैसा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, पॉली मींस ज्यादा, नंबर ऑफ एग्स ज्यादा रहते हैं, वो एग्स आपस में कंपटीशन, उनका आपस में कंपटीशन होता रहता है. तो व्हेनेवर उनको स्टिमुलेशन के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं तो ऑल एग्स विल कम, समटाइम्स ऑल एग विल कम, ऑल और नन, all eggs will come, especially IVF, since we are giving super ovulating, we are giving more injection, उनमें ज्यादा eggs आ जाते हैं, उनमें hyperstimulation हो जाते हैं आजकल तो. लेकिन सेफ एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल है, एगोनिस्ट ट्रिगर है, और हम लोग फिर पिकअप करके उनको फ्रीज कर देते हैं, सो दैट पेशेंट विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. फ्रीज करके नेक्स्ट साइकिल में उनको ट्रांसफर किया जाता है. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, वन ऑफ द चैलेंज टू द डॉक्टर, स्पेशली इन केस ऑफ पीसीओडी. और कभी कभी लेकिन पेशेंट को हाइपोस्टिमुलेशन भी होता है, कम एग्स निकल जाते हैं, जैसे ही हम रिस्पांस एक्सपेक्ट करते हैं वैसा नहीं हो पाता. फिर पिकअप करने के बाद में क्वालिटी ऑफ द एम्ब्रियो, पीसीओडी में जैसे नंबर ऑफ एग्स ज्यादा रहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वांटिटी रहती है लेकिन उनमें क्वालिटी नहीं रहती है. इट विल बी वेरी पुअर क्वालिटी, उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन रहेगा, अनुप्लॉइडी रहेगा, इमेच्योर रहेंगे एग्स, M2 नहीं रहेगा. तो वो सभी प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन के चांस और प्रेगनेंसी का चांस कम हो जाता है. सो क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थिर्डली, फिर क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियो जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे क्वालिटी पुअर होती जाती है, उनमें फ्रेगमेंटेशन रहेगा या अनुप्लॉइडी चांसेस, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी चांसेस आर इंक्रीजेस, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 35. सो क्वालिटी एज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड रहते हैं. अभी पेशेंट को क्या चैलेंज होता है ड्यूरिंग आईवीएफ एंड आईयूआई, स्पेशली ड्यूरिंग आईवीएफ? कॉस्ट. सी, आईवीएफ इज अ कॉस्टली प्रोसीजर, कॉस्ट तो फैक्टर है, लेकिन मैं समझती हूँ अगर जो स्पेशली आईवीएफ का तक जाने से पहले, अगर आप आफ्टर मैरिज, इफ कपल इज नॉट कंसीविंग विद इन 1 year, आफ्टर 1 year if they are not conceived, start treatment early, तो आपको प्रेगनेंसी आईयूआई में हो जाएगी. देयर इज नो नीड फॉर टू गो फॉर आईवीएफ, तो आपका काफी कॉस्ट बच जाएगा. इन द आईवीएफ इट विल बी कॉस्टली प्रोसीजर. फिर पेशेंट को बार बार ब्लड इन्वेस्टिगेशंस को जाना पड़ेगा, हिस्ट्रोस्कोपी करना पड़ेगा, डेली इंजेक्शंस, सोनोग्राफी मॉनिटरिंग के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा. जब पिकअप होएगा तब एनेस्थेसिया, बाद में एम्ब्रियो ट्रांसफर. ये सभी प्रोसीजर थोड़ा मेंटली स्ट्रेसफुल होता है पेशेंट को, लेकिन ये सभी स्टेज के टाइम अपना मेंटल स्टेट आपको मेंटेन करना, स्टेबल स्टेट मेंटेन करना है. डॉक्टर उसका काम करेगा, उसको जो करना है, लेकिन आपको आपका मेंटल स्टेट स्टेबल रखना है, क्योंकि आपके हाथ में क्या है वो आपको करना है. डॉक्टर जो करना है उसका करेगा, लेकिन आपका अपना स्टेट, मेंटल स्टेट आपको स्टेबल रखना है. आजकल लाइफस्टाइल की वजह से ये सभी डिसीज आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जैसे ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, डिप्रेशन और इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी ये बेसिकली बिकॉज ऑफ लाइफ, इट इज वन ऑफ द लाइफस्टाइल डिसीज. तो अभी हमको इसको कैसे ओवरकम करना है, कैसे कम करना है? तो फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई विल ट्राई टू टेल यू प्रैक्टिकल टिप्स. तो पहली बात, परसिस्टेंस.
बहुत बार व्हाट आई हैव सीन इन माय एक्सपीरियंस, पेशेंट आता है, अभी समझो शादी के बाद समझो 4 साल हुए, ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, 1 और 2 मंथ्स दे विल ट्राई IUI, नहीं हुआ तो दे विल जस्ट लीव द ट्रीटमेंट, घर में 1-2 साल बैठेंगे, देन दे आफ्टर 2 to 3 years दे अगेन गो टू द अनदर हॉस्पिटल, फिर 1-2 साइकिल करेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर करेंगे, जैसे ये सब चीज में टाइम वेस्ट होता है, फिर उनका जो 4 साल था, 10 साल हुआ, 15 साल हुआ, 20 हुआ, देन इट विल गो फॉर द IVF। तो जैसे इनिशियल स्टेज में शादियों के 2 वर्ष 3 वर्ष हुआ, वो टाइम जैसा कम पीरियड रहता है तो उनको प्रेगनेंसी का चांस ज्यादा रहता है। एज द टाइम पासिस वैसा उनको टाइम भी ज्यादा लगता है और उनका कॉस्ट भी बढ़ता जाता है। तो माय सिंसियर एडवाइस टू ऑल पेशेंट्स इज, शादी के बाद में अगर उनको 1 साल के अंदर कंसीव नहीं होते, इफ बोथ ऑफ देम आर स्टेइंग टुगेदर हैविंग रिलेशंस रेगुलरली, 1 साल के अंदर वो कंसीव नहीं हो पाते तो उनको ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट करना चाहिए, और जल्दी स्टार्ट करने से उनको रिजल्ट भी जल्दी मिलेगा और उनका कॉस्ट भी काफी सेव होगा। दूसरी बात, बहुत बार पेशेंट का मिसनोमर क्या रहता है कि मेरी मदर इन लॉ को शादी के 10 साल बाद में बच्चा हुआ, 15 साल बाद में हुआ, तो मेरे को भी ऐसा होगा। एब्सोल्युटली नो रिलेशनशिप, मदर इन लॉ कितने साल बाद में उनको बच्चा हुआ और आपको कितने साल बाद में होगा, उसका कुछ भी संबंध नहीं है। तो 1 year इज द 1 year के बाद में नहीं हुआ तो इमीडिएटली स्टार्ट ट्रीटमेंट, एंड वेन एवर यू गो टू द एनी हॉस्पिटल वेयर इनिशियली दे विल बी ट्राइंग IUI ओनली, तो IUI के टाइम एटलीस्ट यू डू फॉलो फॉर द 1 year, डोंट लीव ट्रीटमेंट इन बिटवीन, क्योंकि क्या होता है, एवरी पेशेंट इज अ डिफरेंट पेशेंट, डॉक्टर विल स्टडी यू, आपके हार्मोन्स लेवल करेंगे, आपको स्टिमुलेट करेंगे, IUI के टाइम आपको टैबलेट देंगे, आपकी ओवरी कैसे रिस्पॉन्स करती है वो देखेंगे, एंड इट इज लाइक परमिटेशन कॉम्बिनेशन, एंड इन एवरी पेशेंट विल बी डिफरेंट, और सेम पेशेंट में एवरी साइकिल विल आल्सो बी डिफरेंट। तो आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर हैज टू स्टडी हाउ इज यूर रिस्पॉन्स एंड अकॉर्डिंगली दे विल चेंज द ट्रीटमेंट। तो आपको मिनिमम 1 साल डॉक्टर को टाइम देना चाहिए कि उसको प्रेगनेंसी होने के लिए। 1 महीना 2 महीना में प्रेगनेंसी नहीं होती है तो छोड़ देते हैं, एंड देन अगेन दे विल वेट, अगेन दे विल गो अनदर डॉक्टर आफ्टर 2 to 3 years, देन अगेन 2 to 3 months दे विल टेक ट्रीटमेंट, देन अगेन दे विल वेट। लेकिन ये सब पीरियड में टाइम तो जाता ही है, साथ में जो छोटा प्रॉब्लम इनिशियली जो इजीली सॉल्व हो सकता था वो प्रॉब्लम बड़ा हो जाता है। एग्जाम्पल, शादी के बाद में उसका समझो उसका 20-22 साल में शादी हो गई एंड शी हैज नॉट कंसीव्ड विद इन 1 year, दे विल गो टू द वन हॉस्पिटल, ऐसा ही अभी क्या 1 साल हुआ है, देखेंगे, दे विल जस्ट कैजुअली गो, 1-2 महीना ट्रीटमेंट लेंगे, नहीं हो तो छोड़ देते हैं, फिर 3-4 साल घर में बैठते हैं। तब तक क्या हो जाता है, जो लेडी पतली थी शादी के टाइम पे वो मोटी हो जाती है, वो सब पीरियड में उनका वेट बढ़ जाता है, और जो प्रॉब्लम छोटा प्रॉब्लम था वो बड़ा हो जाता है। एग्जांपल, जैसे मेल में अगर तो कुछ बॉर्डर लाइन काउंट कम है तो हम लोग ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया बोलते हैं, जो काउंट पहले थोड़ा लोअर साइड था, उसको प्रिपरेशन बना के जो IUI कर सकते थे, वो जैसे टाइम पास हो जाता है तब तक वो काउंट एकदम नील हो जाता है। तो जो स्मॉल प्रॉब्लम इनिशियली इजीली सॉल्व हो सकता था वो प्रॉब्लम बड़ा हो जाता है जैसे टाइम चला जाता है। तो इसलिए टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई हैव टोल्ड यू इनिशियली ऑल्सो, एज जैसा एज टाइम पास हो जाता है वैसा एज उनका बढ़ता जाता है। सो गोल्डन फॉर द फर्टिलिटी, गोल्डन एज फॉर वुमन इज 25 years, 25 years इज द गोल्डन एज, वो टाइम पे उसको बच्चा होना चाहिए, एंड एटलीस्ट बिफोर 30 दे शुड हैव 1 child। अगर कोई करियर ओरिएंटेड वुमन है, जो भी कुछ पढ़ रही है, कुछ भी है, 30 एज के अंदर उसको एक बच्चा होना चाहिए, ये रफली मोटा मोटी आपको मैं बता रही हूँ। तो जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए, और बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है, डॉक्टर के पास गए 1 महीने में आपको रिजल्ट होएगा, डोंट एक्सपेक्ट हाई रिजल्ट्स, क्योंकि ये साइंस है, हर चीज का एक फॉर्मूला है। इन IUI ऑल ओवर द वर्ल्ड सक्सेस रेट पर साइकिल इज 10 to 15%। 10 to 15% मतलब अगर 100 लोगों को हम IUI करते हैं तो 10 लोग 1 महीने में कंसीव होते हैं, 100 लोगों में 10 लोग 1 महीने में कंसीव होते हैं, ठीक है, 90 लोग नहीं होते। सिंस इट इज सिंपल प्रोसीजर, यू हैव टू डू इट मंथली। तो अगर क्यूमुलेटिव सक्सेस रेट इफ वी सी, लाइक अगर 6 महीना आप कंटिन्यूसली IUI करते हो तो इट इज 60%। सो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी इंक्रीजेस अगर आप थोड़ा टाइम दिए तो इसलिए परसिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो डोंट स्टॉप इन बिटवीन, अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करना, जैसे मैंने आपको बोला, टाइम उसमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत बार पेशेंट क्या होता है, जैसे उसको फॉलिकुलर स्टडी को हम लोग बुलाते हैं IUI के टाइम,
उसको एवरी 3 days 2 days बुलाते हैं, तभी वो बोलते हैं कि आने को नहीं होता है, हस्बैंड नहीं है, ये जो कुछ भी एक्सक्यूज बोलते हैं, मदर इन लॉ नहीं बचते अगर जो भी। तो डोंट टेल एनी एक्सक्यूजेस, क्योंकि जो छोटा प्रॉब्लम अभी है वो बाद में बड़ा ही होना है, उसको पोस्टपोन नहीं करना है, करना तो करना ही है। अगर आपको डिजायर है, मुझे बच्चा चाहिए, तो आपको थोड़ा तकलीफ लेना पड़ेगा, हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत के बिना फल नहीं मिलेगा। इनिशियली यू हैव टू डू सम होमवर्क, यू हैव टू डू इट। फिर अगर आपका वेट ज्यादा है तो वेट लॉस करना चाहिए, तो वेट लॉस के बारे में आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स इन डिटेल। फिर पोस्टपोन नहीं करना प्रेगनेंसी, मुझे पढ़ना है, मुझे अभी करियर बनाना है, मुझे घर बनने दो, सेटल होने दो। डोंट पोस्टपोन प्रेगनेंसी, दैट्स मोटा मोटी व्हाट आई हैव टोल्ड यू। रफली बिफोर 30 दे शुड हैव एटलीस्ट 1 child। ठीक है, तो स्मॉल प्रॉब्लम बिकम बिग प्रॉब्लम एज द टाइम पासेस। सिमिलरली इन आईवीएफ में don't think it is like magic, it very high expectations don't keep, because हम fertilization करके बाहर करके एम्ब्रियो बनाए, तो भी सक्सेस रेट डिपेंड्स अपॉन देयर विल बी डायलॉग बिटवीन एम्ब्रियो एंड एंडोमेट्रियम। इट डिपेंड्स अपॉन सो मेनी अदर फैक्टर, जैसा मैंने आपको बताया माइक्रोस्कोपिक चीज की वजह से। तो और एज, जैसा एज बढ़ती जाती है वैसे सक्सेस रेट कम होता जाता है। तो आईवीएफ, अभी मॉडर्न साइंस ने हमको आईवीएफ एक टूल दिया है जिसकी वजह से बच्चा होने के लिए हमको एक वे है, लेकिन पर साइकिल आईवीएफ का सक्सेस रेट इज 30 to 50%, depends upon the quality of embryo, age of the patient and how patient respond. तो at least usually roughly if they do 3 cycles of IVF, उनको प्रेगनेंसी चांस होने का chances are high. From my experience, I will just like to quote examples like I remember one patient, Mrs. H. I have written, वो मेरे पास आई थी, जैसे उसको शादी होके 20 years 20 साल हुए थे, उसको बच्चा नहीं था। She was from एकदम पुअर फैमिली में से थी। हमने उसका काउंसिल करके IVF किया, 3 साइकिल्स IVF किए। 3 साइकिल IVF के करने के बाद में एवरी टाइम सी कंसीव्ड, हर बार कंसीव होने के बाद में उसका अबॉर्शन होता था, 2 महीना 3 महीना के बाद में उसका अबॉर्शन होता था। फिर अगेन शी विल गो बैक, शी विल कलेक्ट मनी एंड देन कम बैक। लास्ट में हमने उसका 4th IVF किया और एंड देन इट वाज अगेन सक्सेसफुल एंड इट वेंट वेल एंड बाद में उसका बेबी डिलीवर हुआ। आज उस बेबी का बर्थडे है, फर्स्ट बर्थडे ऑफ द बेबी। सो what I tell, why I am telling you this story, she got the baby because of the persistence. उसको persistence था, मुझे बच्चा चाहिए। 2 she had abortion 3 times। बहुत बार क्या होता है, पेशेंट को अबॉर्शन हो गया तो they think मेरा अगली बार भी अबॉर्शन होएगा क्या, मुझे ऐसा ही होएगा क्या। Don't think negative, don't go into the negative cycle। एक कोई जैसा एक ट्री है जिसको फल लगते हैं, बहुत सारे फल लगते हैं, कोई फल छोटे फल निकल जाते हैं, छोटे फल निकल जाते हैं, इसका मतलब वो ट्री को कभी फल नहीं लगेगा ऐसा नहीं। कोई फल निकल जाते हैं, बाद में कोई फल बड़ा हो जाता है। नॉट नेसेसरली एवरी टाइम वो ट्री को कभी फल ही नहीं होगा। सेम थिंग विद द लेडी, अगर उसको अबॉर्शन हुआ है तो उसको हर बार अबॉर्शन होना जरूरी नहीं है। इफ यू कंपेयर विद जनरल पॉपुलेशन, चांसेस ऑफ अबॉर्शन आर हाई, बट स्टिल देयर इज अ होप। कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि मुझे वापस अबॉर्शन होएगा क्या, ऐसा ही होगा क्या। डोंट ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, जो बेस्ट हो पॉसिबिलिटी है वही सोचना चाहिए। फिर दूसरी पेशेंट मिसेस पी, सी वाज आल्सो लाइक मैरिड फॉर 15 years। हमने उसका आईवीएफ किया। उसका प्रॉब्लम था कि थिन एंडोमेट्रियम जैसे यूट्रस के अंदर जो हम लोग परत देखते हैं सोनोग्राफी से, एटलीस्ट वो 7 mm रहना चाहिए, उसके ऊपर रहना चाहिए। तो उनका प्रॉब्लम था कि एंडोमेट्रियम वाज थिन एंडोमेट्रियम में सक्सेस रेट स्टिल डिक्रीजेस। तो वी एक्सप्लेन देम एवरीथिंग कि हाँ बाबा ऐसा चांसेस आर as compared to other people it will be less, but still we will try our level best। उनको हमने मेडिटेशन और सभी सिखाया, उसको प्रॉपरली मेडिटेशन अफर्मेशंस वगैरह सब सिखाए उनको। एंड देन स्टिल शी हैड अ थिन एंडोमेट्रियम ओनली, एंड आफ्टरवर्ड्स वी डिड embryo transfer and she conceived, and this is now ongoing pregnancy। Then I remember one more patient, जिसको शादी होके उसको भी अराउंड 18 years हुआ था, उसको बच्चा नहीं हुआ था, मिसेस आर। लाइक सी वाज लाइक वेरी मच डिप्रेस्ड कि अब मुझे बच्चा नहीं तो मेरी लाइफ में कुछ होप ही नहीं, लाइक आई डोंट वांट टू लिव ओनली दैट काइंड ऑफ कैटेगरी उसका। तो लाइक वी काउंसिलर
फर्दर दिस थिंग IVF, देन उसको हमने किया IVF, एंड इन फर्स्ट साइकिल ओनली शी कंसीव्ड, शी गॉट ट्विंस बेबी एंड बोथ हेल्दी. तो मेरा कहने का मतलब, आई वांट द टेक होम मैसेज ड्यूरिंग दिस, आई वांट टू टेल यू लाइक परसिस्टेंस इज द की. जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते जाने का, लेकिन मुझे बच्चा चाहिए. जिसके अंदर बर्निंग डिजायर रहती कि व्हाट एवर हैपन्स आई वांट अ बेबी, उन लोगों का लिए बच्चा होता है. ओनली एक सेंटेंस में इफ यू आस्क मी, जो लोगों को बर्निंग डिजायर रहते हैं, व्हाट एवर हैपन्स, कितना भी प्रॉब्लम आने तो मुझे बच्चा चाहिए ही. दैट बर्निंग डिजायर इफ इट इज देयर, देन ओनली यू विल हैव अ बेबी. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अगर प्रेगनेंसी हो गया, आफ्टर प्रेगनेंसी ऑल्सो यूजुअली क्या होता है, जो पेशेंट IVF को अंडरगो होते हैं उनका एज थोड़ा लिटिल बिट ज्यादा ही रहते हैं, अबव 35-40, तो उनको प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस भी जनरल पॉपुलेशन कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा रहता है. जैसे उनको डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज हम लोग, प्रेगनेंसी में शुगर आ सकता है, BP आ सकता है, या थोड़ा प्लासेंटा नीचे हुआ, जो भी कॉम्प्लिकेशन है वो चांसेस उनको हाई होता है. सो दिस आर लाइक हाई रिस्क प्रेगनेंसी. तो हमको प्रॉपरली मॉनिटरिंग करना पड़ता है, एंड properly they should do follow up till they get a healthy child. Okay, so how to overcome all these problems? First you know the facts. पहले सक्सेस कैसे कितना हो सकता है उसको फैक्ट में, इल्यूजनरी वर्ल्ड में नहीं रहना है मुझे. ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा. First know the facts. As I have told you, in IUI only 10 to 15% सक्सेस रेट. तो पहले फैक्ट समझो और उसके हिसाब से अपना मेंटल प्रिपरेशन करो. कमिटमेंट, आपने कमिट एक बार हॉस्पिटल जाके अपना ट्रीटमेंट लेना है सोचा, तो कमिटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 1 महीना गए, 2 महीना गए, फिर छोड़ दिया, इट इज ऑफ नो यूज. बिकॉज इफ यू हॉप फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अदर हॉस्पिटल, अगेन इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो. जो पहला डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया, उसने स्टडी किया, देखा था, आप अगर दूसरे हॉस्पिटल जाते हो, अगेन इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो. Again you will go back to the same stage and it will start. So commitment is very important, and minimum 1 year एक हॉस्पिटल को फॉलो अप करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. बिकॉज एवरी पेशेंट इज डिफरेंट एंड डॉक्टर हैज टू स्टडी यू, व्हाट इज योर, हाउ इज योर रिस्पॉन्स, हाउ योर ओवरी रिस्पॉन्ड करती है, कैसा उनका, उसके हिसाब से दे विल गिव ट्रीटमेंट. सो कमिटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर ये सभी चीज में, जैसे आप IUI करो या IVF करो, आपका मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है, मेंटल प्रिपरेशन होना जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंजेक्शंस भी लगेंगे, आपको बार बार जाना है, जो भी चीज है. तो इसलिए मेंटल प्रिपरेशन के लिए आपको मेंटली अपने आप को स्ट्रांग होना है. जैसा कोई आदमी अपना बॉडी बनाने के लिए एक्सरसाइज करता है, और थोड़े ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करते हैं, बाद में उसकी बॉडी बनती है, मसल बनते हैं. ऐसा ही हमको हमारा मेंटल स्टेट स्ट्रांग करने के लिए रेगुलरली हमको एक्सरसाइज करना है. मेंटल एक्सरसाइज, कौन सा मेंटल एक्सरसाइज करना है? जैसे हम शरीर के लिए फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, वैसा मेंटल एक्सरसाइज हमको मेडिटेशन करना है. मेडिटेशन की वजह से हमारा ब्रेन काम रहेगा, डॉक्टर उसका काम करेगा, लेकिन साइमल्टेनियसली हमारी मेंटल स्टेट कूल रहेगी, जिसकी वजह से हमको ज्यादा सक्सेस मिल सकता है. फिर हमेशा पॉजिटिव सोचना, कुछ भी हो जाए, जो भी हो जाए, व्हाट बेस्ट कैन बी डन. कितना भी प्रॉब्लम है, व्हाट बेस्ट कैन बी डन इन दिस सिचुएशन, कीप मेंटल कूल एटीट्यूड, एंड जो भी है, सो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है. वैसे भी अभी ये सिचुएशन आई है, उसको फेस तो हमको करना है. rather than going into negative cycle, think positive, always think positive. मेरा होएगा ही, आई एम पॉसिबल, इट इज पॉसिबल फॉर मी, मुझे बच्चा होएगा ये, आई कैन डू इट. हमेशा होप रखना चाहिए, कितना भी प्रॉब्लम होए. आज तो साइंस इतनी एडवांस है, देयर आर सो मेनी अल्टरनेटिव ऑप्शंस आर अवेलेबल. सो देयर इज ऑलवेज अ रे ऑफ होप कि हाँ मेरे को पॉसिबल है, मुझे बच्चा हो सकता है, आई कैन डू इट. हर चीज में, सिचुएशन में आपको सोचना है कि मुझे करना ही है, और अपना मेंटल स्टेट काम रखना है. तो उसके लिए आपको अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना है, थोड़ा बाहर घूमना है. आपकी नींद 6 to 8 आवर्स मिनिमम नींद होनी जरूरी है. आप अच्छे सर्कल में रहो, फ्रेंड सर्कल आपका अच्छा हो, अच्छी चीज सुनो, थोड़ा वॉकिंग करो, रनिंग करो, हेल्दी फूड खाओ. तो ये सब चीजों की वजह से, बैलेंस न्यूट्रिशन हो, ये सब चीजों की वजह से आपका मेंटल स्ट्रेस काफी कम हो जाएगा. फिर हमारा डाइट कैसा होना चाहिए? हमारा डाइट सात्विक डाइट होना चाहिए, जिस बैलेंस डाइट, जिसके अंदर मल्टी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल सब होना चाहिए. I think there is one detailed lecture on the sattvic diet containing all the fruits and vegetables. फिर हमारे खाना के जैसा as I have told you during pregnancy also हमारा डाइट सात्विक डाइट होना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए. फिर वेट लॉस, कोई भी अगर लेडी अपने इफ सी इज ओबेज, अगर उसका वो 5 to 10% वेट लॉस करती है, तो उसका प्रेगनेंसी चांस, स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी चांस इंक्रीजेस बाय 50%. 5 to 10% वेट लॉस, मतलब अगर वो लड़की 60 kg उसका वेट है, तो अगर वो 6 kg वेट भी लूज करती है,
6 kg वेट लूज करने से उसका प्रेगनेंसी चांस ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस बाय 50%. इट हैज बीन प्रूवन इन द स्टडीज. तो थोड़े पीरियड के लिए वेट लॉस अगर प्रेगनेंसी कराना है तो पहले वेट लॉस करना इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो वेट लॉस बहुत लोग अभी पेशेंट प्रैक्टिकली स्पीकिंग आते हैं कि वेट लॉस करना, लेकिन कैसे करना. तो I think there are different ways of doing weight loss. You can go to gym or whatever, fasting, intermittent fasting, and different diet. You can consult dietitian or whatever. लेकिन simple way अगर आप मुझे पूछते हो तो from my experience what I have observed, intermittent fasting is the best. मतलब 2 times meal, 2 meal. सुबह what I advise them, सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे 2 बार खाना है. सुबह 10 o'clock और शाम को 6 बजे खाना खाना है. जो खाना है आप उसमें खाओ. उसके अंदर आपको क्या क्या चीज अवॉइड करना है. स्वीट, मीठा, कुछ भी मीठा, तेल, तला वाला, बाहर का खाना, ब्रेड, बिस्किट, बेकरी आइटम, नॉनवेज, कोल्ड ड्रिंक्स, पेस्ट्री, ये सब चीज अवॉइड करना है. इतनी चीज आपको नहीं खाना है. और 2 टाइम्स खाली, बाकी ये छोड़ के बाकी चीज दिन में 2 बार खाना है. और खाने में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इंक्लूड होना चाहिए. खाली पेट नहीं रहना है. ये 2 बार खाना, बीच में दो मील्स के बीच में कुछ नहीं खाना है. 6 बजे के बाद में कुछ नहीं खाना है. इतना भी सिंपल चीज अगर वो फॉलो करते हैं तो उनका हंसते खेलते महीने में 5 kg वेट लूज हो जाता है. इतनी चीज अवॉइड करना है. और 2 मील थ्योरी, 2 बार ही खाना खाना है. बार बार खाना नहीं खाना है. और 2 बार खाना खाना है. और ये खाने में जैसा मैंने ये जो चीज अवॉइड करना मैंने बोला वो छोड़ के बाकी की चीज, चपाती, सब्जी, दाल, चावल, नॉर्मल खाना और वेजिटेबल्स और कोई फ्रूट, दही ले सकते हैं. इतना सब चीज किया तो उनका बिना कोई एफर्ट के, विदाउट एफर्ट, एटलीस्ट 5 kg वेट कम हो जाएगा. तो वेट हम लोग यूजुअली बीएमआई में देखते हैं, बॉडी मास इंडेक्स. तो इसके अंदर हाउ वी कैलकुलेट इट बाय वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर. उसके सबसे बीएमआई देखा जाता है. इफ इट इज ए हेल्दी 18.5 to 24.5 इज हेल्दी. बट अगर कोई ओवरवेट की तरफ, ओबेसिटी की तरफ बीएमआई ज्यादा है तो उसके हिसाब से हमको डोज एडजस्ट करना पड़ता है इंजेक्शंस का. तो यू कैन सी फ्रॉम द स्टडीज, अलग अलग स्टडीज दुनिया में बहुत लोगों ने किया है. रफली आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्रॉम द स्लाइड, अगर 5 से 10% वेट कम करता है कोई लेडी तो उसका 50%, मोर देन 50% चांस ऑफ प्रेगनेंसी ऑटोमेटिक इंक्रीजेस प्रेगनेंसी चांस बाय 50%. सो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द वेट. तो लाइफस्टाइल चेंजेस उनको क्या क्या करना है, डाइट में, एक्सरसाइज में, वेट लॉस करना, बिहेवियरल चेंजेस, स्मोकिंग वगैरह है तो छोड़ना है. आजकल सब लोग बोलते हैं मुझे पीसीओडी पेशेंट है. तो आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट व्हाट इज पीसीओडी. पीसीओडी मींस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज. पॉलीसिस्टिक में क्या होता है, पॉली मींस मोर, एक ओवरी के अंदर ज्यादा एग रहते हैं. तो उन लोगों में क्या होता है, पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं. मे बी रेगुलर पीरियड 2 months, 3 months, 5 months, कोई लोगों को 6 months, कोई अप टू 1 year ऑल्सो. और रफली देखेंगे 2 to 3 cycles in 1 year. उनको पीरियड्स नहीं आएंगे, उनके शरीर के ऊपर बाल ज्यादा रहेंगे, वो लोग मोटापे की तरफ रहेंगे, ओवर वेट रहेंगे. तो उन लोगों में एक्सेस एंड्रोजन की वजह से हिरसुटिज्म रहता है, बाल ज्यादा रहते हैं. तो उन लोगों में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और जिसकी वजह से बहुत सारे एग्स रहते हैं. वो एग आपस में कंपटीशन रहता है जिसकी वजह से एक भी एग हर महीना, जैसा लेडी के शरीर में एक एग मैच्योर होके उसको ओव्यूलेट होना रहता है. उन पीसीओडी में ज्यादा एग रहते हैं, आपस में कंपटीशन होने की वजह से एक भी एग ऊपर नहीं आता है. देयर इज नो ओव्यूलेशन, देयर इज नो पीरियड, देयर इज नो प्रेगनेंसी. ओके, तो उनको अपना वेट कम करना है. तो वेट कम करने की वजह से आई टोल्ड 50% प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व. और बाकी हम लोग ड्रग दिए जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस वगैरह कम किया जाता है. तो अपने को क्या करना है, व्हाट वी शुड डू, वी शुड हैव ए हेल्दी डाइट to keep our mental health and physical health good. You have to have healthy lifestyle. इसमें आपको एक्सरसाइज करना है रेगुलरली, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं. इफ यू डू सूर्य नमस्कार, उसके जो 12 आसन है यूट्यूब में देख के एटलीस्ट 5 सूर्य नमस्कार डेली एक फिक्स कर लो. हाँ, 5 सूर्य नमस्कार मुझे करना है, 2 बार खाना खाना है, वॉकिंग को जाना है. एक 3-4 सिंपल स्टेप, ऐसे स्टेप इंकल्टेट करो लाइफ में जो यू कैन डू इट फॉर ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो आप ज्यादा टाइम तक कर सकते हो और जो इजीली फॉलो कर सकते हो. ऐसा आपको करना है तो आप बहुत दिन तक करेंगे, आपको इसमें मजा भी आएगा. एक्सरसाइज करना है, जो भी आपको अच्छा लगता है एक्सरसाइज. फिर प्राणायाम, थोड़े प्राणायाम, सिंपल प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, जो भी आपको मालूम है, सांस की एक्सरसाइज, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन अपनी बॉडी में बढ़ जाता है और यू विल हैव गुड फीलिंग, वेरी फीलिंग गुड इफेक्ट.
फिर ये जो हैप्पी हार्मोन है अपने को अपनी बॉडी में बनाना है, जैसा कि डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स। तो ये जो हैप्पी हार्मोन्स अपने को अपनी बॉडी में बढ़ाना है। सी हैप्पीनेस कोई दुकान में नहीं मिलते कि जाके लेके आ गए, यू हैव टू क्रिएट हैप्पीनेस इनसाइड। आजकल हम लोग, अभी तक हम लोग बाहर की दुनिया देखते आए कि मुझे ये चीज मिला तो मुझे खुशी मिलेगी। खुशी अपने अंदर की चीज है। यू हैव टू क्रिएट हैप्पीनेस ऑन योर ओन। एक कोई आदमी कितना पुअर आदमी भी होते हुए अगर वो रोड के ऊपर सो रहा है तो भी वो खुशी से सूखी रोटी भी खा के वो खुश हो सकता है। वही कोई करोड़पति आदमी एसी के रूम में सो के भी ही इज नॉट हैप्पी। सो हैप्पीनेस इज उसकी मेंटल सिचुएशन। यू कैन क्रिएट हैप्पीनेस ऑन योर ओन, यू हैव टू क्रिएट इट। वो कोई पैसे से नहीं मिलता है। सो यू हैव टू क्रिएट हैप्पी थॉट्स एंड क्रिएट हैप्पीनेस फ्रॉम इनसाइड, जिसकी वजह से अपनी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे डोपामिन के लिए आपको अच्छा म्यूजिक सुनो, मूवमेंट करो बॉडी का, अच्छा नींद करो, अच्छा खाना खाओ, हेल्दी डाइट करो। ऑक्सीटोसिन के लिए फैमिली के साथ में टाइम बिताओ, गिव हग, किसको भी अप्रिशिएट करो, डांस करो, जो भी आपको अच्छा लगता है। सेरोटोनिन के लिए योगासन करो, आप नेचर के साथ में टाइम स्पेंड करो। एंडोर्फिन्स के लिए अपनी बॉडी को मूवमेंट करो, खुशी से हंसो। तो ये सभी हैप्पीनेस अपने को खुद को क्रिएट करना है। और जैसे आप मेडिटेशन करेंगे, जो भी आप मेंटली काम रहेंगे, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस है वो भी काफी हद तक नॉर्मल हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवेरियन एक्सिस, ये सब एक्सिस एक लेवल में काम करता है, जिसकी वजह से हमारे एक ओवरी में एग बनते हैं। तो ये एक माइक्रोस्कोपिक जो बैलेंस चलता रहता है। अगर आप मेडिटेशन रेगुलरली करते हो तो ये लेवल भी काफी हद तक नॉर्मल आ जाएगा और आपके प्रॉब्लम काफी सॉल्व हो जाएंगे। मेडिटेशन के बाद में स्टडीज में प्रूव किया गया कि ब्रेन का ब्लड सप्लाई बिफोर मेडिटेशन कैसा था, आफ्टर मेडिटेशन कैसा है, आफ्टर 15 मिनट्स, आफ्टर 25 मिनट, डेफिनेटली इंक्रीजेस द ब्लड सप्लाई, और जिसकी वजह से आपका मेंटल कूलिंग हो जाएगा, आपकी मेमोरी, आईक्यू, फोकस, एवरीथिंग विल इंक्रीज। So as I have told you initially also, important step during IVF is the embryo transfer. ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर के टाइम डॉक्टर तो आप अपना करेगा, लेकिन आपको क्या करना है, यू हैव टू रिलैक्स। आपको फुल मेंटली रिलैक्स होना है, वो टाइम पे टेंशन में नहीं आना है। क्योंकि अगर आपको वो टाइम पे अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। आपको रिलैक्स रहना है, तो रिलैक्स कैसे रहेंगे? अगर आपको पहले से ही मेंटल रिलैक्सेशन करने की आदत, तो आप वो टाइम पे रिलैक्स रह सकते हैं। जैसा कोई एक सोल्जर है, पहले से ही उसको अगर प्रैक्टिस है तलवार चलाने की, कैसा युद्ध करना मालूम है, तो वो जब युद्ध भूमि में जाएगा तब वो चला सकता है। मैं अभी नहीं प्रैक्टिस किया, लास्ट मोमेंट पे युद्ध भूमि में जाके मैं करूंगा बोले तो नहीं होता है। सो यू हैव टू डू इट फ्रॉम द बिगिनिंग। पहले से उसको प्रैक्टिस चाहिए, तो फिर वो टाइम पे वो कर सकता है। ऐसा ही आप पहले से मेडिटेशन, कुछ भी रिलैक्सिंग टेक्निक पहले से ही फॉलो करेंगे, मेंटल रिलैक्स करने को, अपने आप को काम करने को आता है, तो दैट टाइम यू कैन डू इट। सो यू हैव टू डू इट फ्रॉम द बिगिनिंग। इट इज लाइक अ डेली रूटीन। जितना आपका एज है उतना मिनट मिनिमम मेडिटेशन होना चाहिए। अगर कोई 50 साल का है तो 50 मिनट्स मेडिटेशन मिनिमम होना चाहिए। जितना आपका एज उतना मिनट हम अपने आप को दे ही सकते हैं। मेडिटेशन करने की वजह से इट हैज बीन प्रूवन बियॉन्ड डाउट यूट्रस का ब्लड सप्लाई बढ़ता है, जिसकी वजह से आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। किसी ने, आइंस्टाइन ने क्या खूब कहा है, वी कैन नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स विद द सेम थिंकिंग वी यूज्ड व्हेन वी क्रिएटेड देम। अभी तक हम लोग सेम थिंकिंग पैटर्न में से करते हुए चल रहे हैं और रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको कुछ अलग चेंज, कुछ अलग रिजल्ट चाहिए, तो यू हैव टू चेंज द मेथड आल्सो। सेम थिंकिंग पैटर्न में से आप गएंगे तो नहीं होएगा। कोई कोई लोग रहेंगे जिसमें पहला आईवीएफ फेलियर हुआ है, सेकंड फेलियर हुआ है, अगेन दे वांट टू अंडरगो। सो दिस टाइम व्हाई डोंट यू चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग, व्हाई डोंट यू चेंज योर पैटर्न ऑफ थिंकिंग। पहले इस बार थोड़ा मेंटल काम करके देखो, मेंटल कूलिंग करके देखो, मेडिटेशन करके देखो, वे चेंज करके देखो, दे विल गेट ड्रास्टिक रिजल्ट। वो कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, कभी भी नहीं सोचना। क्योंकि पहली बात, यू थिंक कि मेरे साथ तो जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा हुआ, और जो होएगा वो और भी अच्छा होएगा। ऑलवेज यू थिंक पॉजिटिवली एवरी सिचुएशन, इसमें क्या अच्छा है, भगवान मुझे क्या सिखाना चाहता है, व्हाट ही वांट्स टू टीच मी, ऐसा सोचना। ऐसा नहीं सोचना मुझे बच्चा नहीं हुआ, ठीक है बच्चा नहीं हो रहा, इट इज अ वन सिचुएशन, लेकिन व्हाट गॉड वांट्स टू टीच मी, उसमें से क्या मुझे सीखना है। आई विल टेल यू वन एग्जांपल। जैसे अकबर बीरबल की स्टोरी आपने सुनी है, आपको पता है। एक बार क्या होता है, अकबर का एक उंगली कट हो जाता है, तो वो बीरबल को बोलता है, देख बीरबल मेरा उंगली कट हो गया। तो बीरबल बोलता है अच्छा हुआ। तो वो राजा को गुस्सा आता है,
अच्छा हुआ मेरा उंगली कट हो गया और ऊपर से तू बोलता है अच्छा हुआ। तो वो राजा को गुस्सा आता है, फिर बोलता है कि बिरबल को जेल में डाल दो। तो उसको जेल में डाल देता है। फिर थोड़े दिन के बाद में राजा अकबर शिकार के लिए जाता है जंगल में। तो वो बाय मिस्टेक आदिवासी की इलाके में घुस जाता है और वो आदिवासी लोग उसको पकड़ लेते हैं, पकड़ के बंदी बना लेते हैं। फिर उनको बलि देने का सोचते हैं, राजा को बलि चढ़ाएंगे बोल के आदिवासी लोग सोचते हैं। फिर जब वो देखते हैं तब वो देखते हैं कि अरे एक उंगली नहीं है इसके, अरे ये तो खंडित बलि है बोल के फिर नहीं करते, तो राजा को छोड़ देते हैं। ये राजा जब वापस आता रहता है तो रास्ते में सोचता है यार मेरा आज उंगली नहीं कट हुआ वाला था बोल के मैं आज बच गया, नहीं तो मेरी बलि चढ़ जाती थी। तो बिरबल ने अच्छा ही बोला था कि जो उंगली कट हुआ अच्छा हुआ। तो उसने बोला था अच्छा ही था। तो फिर घर आने के बाद में राजा बिरबल को छोड़ देता है, जेल में से निकाल देता है और बोलता है कि माफी मांगता है कि मैंने तुमको गलत समझा, आई एम सॉरी, तुमने बोला सही था, जो भी हुआ अच्छा हुआ। फिर बिरबल बोलते हैं आपने मुझे जेल में डाला वो अच्छा हुआ। तो अकबर सरप्राइज होता है, मैंने अब तुमको जेल में डाला और फिर तुम वो भी बोल रहे कि वो भी अच्छा हुआ, उसमें क्या अच्छा है। तो बोलते हैं अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते थे तो शिकार के टाइम आपके साथ मैं रहता था, अगर आपकी बलि नहीं चढ़ती थी तो मेरी बलि चढ़ती थी, तो इसलिए आपने मुझे जेल में डाला वो भी अच्छा हुआ। इसलिए जो भी होता है अच्छा होता है, हर सिचुएशन में ऐसा सोचना है कि जो भी होता है अच्छा ही होता है। कभी भी नहीं सोचना कि ये ऐसा क्यों हुआ और उसमें व्हाट बेस्ट बेस्ट पॉसिबल क्या कर सकते हैं उतना करना, और भगवान मुझे क्या सिखाना चाहता है ये सिचुएशन से मैं क्या सोच सकती हूँ। ये तो आईवीएफ की जर्नी है। लाइफ में ऐसे बहुत सिचुएशन आएंगे जिसके टाइम पे आपको पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, या ऐसा क्यों हुआ मेरे को और अच्छा क्या कर सकते हो वो सोचना है। तो जैसे सब आईवीएफ हो जाएगा, आपका प्रेगनेंसी हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, लेकिन आप आगे भी लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे, तो आपका वो मेंटल एटीट्यूड बनाना जरूरी है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। हर सिचुएशन में यू हैव टू थिंक गुड ओनली, व्हाट इज गुड इन दिस सिचुएशन, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम द सिचुएशन, यू हैव टू थिंक लाइक दैट। सो उसके लिए हमको क्या करना है, हमको हमेशा गॉड के साथ में कनेक्टेड रहना है। इफ यू आर ऑलवेज कनेक्टेड विद द गॉड, ही विल बी गिविंग यू सिग्नल्स, आपको बोलते रहेंगे ऐसा करो, यू डू लाइक दिस, यू विल गेट इंट्यूशंस। हर सिचुएशन में आपको गाइडेंस होता है। फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई विल टेल यू, व्हेनेवर समटाइम्स यू विल गेट स्टक somewhere who don't know what to do, if you close eyes and just take guidance from divine guidance, you will get somewhere, no you do like this and you will get correct path. So हमेशा भगवान से कनेक्टेड विद द गॉड, वट एवर गॉड यू थिंक, उनके साथ में कनेक्टेड रहेंगे तो आपको एक मेंटल स्टेबिलिटी भी रहेगी, यू विल बी कॉन्फिडेंट एंड यू विल नेवर डू रॉन्ग थिंग्स। सो हमेशा गॉड के साथ में कनेक्टेड रहो, डू रेगुलर मेडिटेशन, जिसकी वजह से आज तक तो बाहर देखते आए, बाहर देखना छोड़ दो, अभी अपने अंदर झांको। हम अंदर झांके खुशी अपने अंदर क्रिएट करो, व्हाट बेस्ट कैन बी डन इन एवरी सिचुएशन यू थिंक। तो ये हमारी जर्नी, आईवीएफ की जर्नी, इसकी वजह से हैप्पी हो जाएगी, हैप्पी पीसफुल, और आपको प्लेजेंट एक्सपीरियंस हो जाएगा और आपको डेफिनेटली यू विल गेट अ बेबी। लेकिन जर्नी, आपको ये जर्नी ही आपको ये खुशियों से भरी हुई करनी है। तो कभी भी हम लोग देखते हैं कहाँ भी ट्रेन में वो लिखा रहता है हैप्पी जर्नी, तो जर्नी हैप्पी होना जरूरी है, हैप्पी डेस्टिनेशन नहीं लिखा रहता है। तो जर्नी हैप्पी होना, तो हैप्पी जर्नी होने के लिए हमको ही एफर्ट करना है। तो हमको, डॉक्टर उसका इफेक्ट जो करना है वो करेगा, हमको क्या करना है, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है, हर चीज में अच्छा ही सोचना है। सो यू विल गेट गुड रिजल्ट। तो उसके लिए हमको रेगुलरली मेडिटेशन करना है, उनके साथ में कनेक्टेड रहना है, वो हमको क्या बोलना चाहता है, हमको अंदर की आवाज सुनना है। जैसे एक छोटा बच्चा कोई मार्केट में जा रहा है, बहुत रश है, तो भी छोटा बच्चा अपनी उंगली अपने पिता के हाथ में दिया, तब वो इधर तो देखता नहीं, चुप, ही विल बी इन ओन वर्ल्ड, उसको मालूम है मुझे पिता अपनी जगह पे पहुंचा देगा। ऐसा ही इस संसार रूपी लाइफ में अगर आपकी एक उंगली आप उस परम पिता परमात्मा के हाथ में दे देते हो, तो वो आपको ये नैया इजीली पार करा सकेगा और यू कैन हैव अ इजी लाइफ। सो अपनी एक उंगली उनको दे के तो देखो, उनके ऊपर अपना पूरा टेंशन सौंप के तो देखो, तो आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यू विल गेट गाइडेंस टाइम टू टाइम, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। सो जो भी जर्नी है, नॉट ओनली आईवीएफ जर्नी, अदर भी जर्नी, अपनी लाइफ में भी जो भी प्रॉब्लम्स है वो क्या आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो गेट कनेक्टेड विथ हिम, सो ही विल बी गाइडिंग यू कंटिन्यूअसली। ओके, ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सो मच मैम, बहुत वंडरफुल और वैल्यूबल नॉलेज से भरपूर आपका सेशन था।
बहुत सारे चैट बॉक्स में क्वेश्चन भी आए हैं। आई थिंक सभी को उसके आंसर्स मिले होंगे। लेकिन और भी कोई अगर क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। मैं हम लोग आपको अनम्यूट का ऑप्शन ओपन करके देते हैं, आप बात कर सकते हैं मैम से। Yeah. Anybody wants to ask any question? Please unmute yourself so you can ask मैम। Ma'am, I have a question. हाँ जी। After how many cycles of failed IVF with your own oocyte, one should think of going IVF with a donor oocyte? See, ऐसा how many cycles ऐसा बोल नहीं सकते. It changes from patient to patient. Right, It ma'am. depends upon how many eggs get in during the pickup. कितने egg, उसकी quality क्या है, and what is the उसकी quality अगर poor है, समझिए, even if it is one pickup and quality poor है और number of eggs कम है या fertilization नहीं होता है या fertilization के बाद में arrest होता है, it depends exactly what is the problem. तो उसके हिसाब से बोलते हैं, ऐसा कोई number of cycles कोई fix नहीं है. Okay. So It in my changes from case, patient to patient. when I underwent IVF for the first time, there हाँ were जी. good 8 oocytes with M2 stage ka oocytes. And however, only 2 embryos they reached till day 5. Blastocyst grade 1, there were Okay. only 2 embryos. हाँ जी. However, it did not succeed after embryo transfer. अच्छा. Now that second time the ovum pickup is done, there are only 4 oocytes with M2 stage. Abhi Okay. to I have not received the news whether there are any embryos or not. So अभी 4 एम्ब्रियो M2 के थे, तो उसमें से कितने ब्लास्ट हुए? वही मैम, वही अभी तक मुझे सेंटर ने फोन करके बोला नहीं है. हाँ हाँ. So I am thinking, as you told me, ma'am, I am gonna continue with my gynec for good 3 cycles. या तो अभी आप कितने, आपके डे 5 के एम्ब्रियोस कितने बनते हैं? आई मीन व्हाट देयर वर फ्रेगमेंटेशन, अरेस्ट हुआ था, क्या हुआ था? यू डिस्कस विद द डॉक्टर एंड अकॉर्डिंगली यू कैन थिंक ऑफ डोनर. यू कैन डिस्कस विद द डॉक्टर, दिस इज द प्रॉब्लम नाउ, नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट टू बी डन, एंड इट देन आवाज नहीं आ रही है. आप हेलो अभी आ रही। तो आप डॉक्टर के साथ में डिस्कस करके अभी आगे क्या करना है, कितने एम्ब्रियो बने हैं, कितने ब्लास्ट हुए हैं, अगर क्वालिटी उनका कैसा था, फ्रेगमेंटेशन है क्या उसके अंदर, क्वालिटी कैसी है, उसके हिसाब से यू डिस्कस विद द डॉक्टर एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट IVF. अकॉर्डिंगली यू कैन थिंक. Okay. And what is AMH level? AMH is pretty low. It is 0.9. 0.9. Yes. Still you can go with your own if you think it's okay. It is not very low. And there is one spermal factor as well. The progressive motility is 0. And the anatomy of the sperms is also not that great. So both factors are there. Okay. Male factor, main. What is okay. Main is the main factor. Yes. Okay. So you discuss with your family. Cycles of IUI. And now I have decided to go for IVF. We are both husband and wife are 34 years old. हाँ जी. कितने IUI हुए? I have undergone 5 to 6 IUI cycles. Okay. 6 cycles. Okay, 5 to 6 cycles. Okay. I started the treatment in January. हाँ जी. Underwent IUIs और फिर जुलाई में पहला हिस्टेरोस्कोपी किया और फिर अगस्त में डायरेक्टली IVF ही शुरू कर दिया मैंने. हाँ. तो अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी IVF हो गया कि बाकी है? IVF एक बार हो चुका है, अभी दूसरी बार और अभी करना है. अच्छा, करना है. ओके. AMH क्या है? 0.9. 0.9. Okay, you should go for IVF. इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. What is the age? 34 you told, no? Yes. But I think better you go for IVF. Don't waste time. Okay, ma'am. Okay. Thank you. नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन है मैम, दिव्या अरोरा जी पूछ रहे, हाउ टू अवॉइड डोनर IVF इफ IVF विद सेल्फ एग फेल्स. How to avoid donor IVF if IVF with self eggs fails. अगर IVF में सेल्फ एग फेल्स, वही तो मैंने जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले कितने एग रहते हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, नंबर कितने एग ब्लास्टो तक गए, डे 5 तक गए, सब उसके ऊपर डिपेंड है. अगर वो नहीं जा रहे, क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं है, तो फिर डॉक्टर के साथ डिस्कस करके, बहुत बार डॉक्टर क्या करते हैं, प्रोटोकॉल चेंज करते हैं. इस बार जो इंजेक्शन देते हैं अगली बार इंजेक्शन चेंज करके देखते हैं. सो मेनी टाइम्स इंजेक्शन चेंज की वजह से भी नेक्स्ट साइकिल में उनको अच्छा एम्ब्रियो बन सकता है. लेकिन अगर रिपीटेडली उनको नहीं बन रहे हैं, देन दे कैन थिंक ऑफ डोनर साइकिल ओनली.
देयर इज नो अदर ऑप्शन। अगर नहीं हो रहा है रिपीटेडली तो अवॉइड करने के लिए, अवॉइड ही करना है, खुद का सेल्फ साइकिल ही करना है, तो देन बहुत बार क्या करते हैं, उनको सेल्फ साइकिल करना है, एएमएच लेवल कम है, तो फिर एम्ब्रियो पूलिंग हम लोग बोलते हैं कि इस मंथ में कैसे दो एम्ब्रियो निकले, नेक्स्ट मंथ अगेन, like 3 to 4 cycles it has been done, and then embryo pooling करके collectively then blasto बनाया जाता है, then embryo transfer done. So embryo pooling is one option if they are very much insisting about the self embryos. ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? किसी ने पूछा है मैम वेट लॉस के लिए विक्टोजा इंजेक्शन कितना एडवाइजेबल है? कौन सा इंजेक्शन? विक्टोजा लिखा है। I don't know Victoza what is injection, but I don't know what is this injection, but usually मैंने देखा है बहुत बार पेशेंट वेट लॉस करने के लिए उनको बोला जाता है वेट लॉस करो, तो करके आते हैं, बोले दे विल गो वेनिश 6 months दे विल कम, बट आफ्टर 6 months आते हैं तो वो वेट ज्यादा ही हुआ रहते हैं, कम होने का कम नहीं हुआ रहते मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रैक्टिकली स्पीकिंग। वो थोड़े दिन करते हैं, बाद में अगेन दे विल कंटिन्यू द सेम पैटर्न। तो मुझे लगता है कि एज आई हैव टोल्ड यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, इंटरमिटेंट फास्टिंग, 2 बार खाना, बीच में कुछ नहीं खाना, 10 बजे और शाम को 6 बजे, इस चीज में स्वीट अवॉइड करना, ऑयली फूड बाहर का खाना, और ये बेकरी आइटम्स इतना भी अवॉइड करते हैं, पेस्ट्री कोल्ड ड्रिंक्स इतना अवॉइड करते हैं, तो उनका 5 से 6 kg 2 महीने में आराम से कम हो जाए विदाउट एनी एफर्ट, कुछ भी किए बिना। राइट। और कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं मैम से, अदरवाइज वी विल वाइंड अप आवर सेशन। किसी ने लिखा है AMH 3.53 है, 3 IUI फेल हो गए हैं, क्या नेचुरली कंसीव कर सकते हैं क्या? नहीं IUI कंटिन्यू, आई थिंक 3 IUI फेल हो गए, इट्स ओके, इट इज वेरी सिंपल प्रोसीजर, यू कंटिन्यू, स्टिल यू कंटिन्यू IUI 3 more cycles, since it is simple procedure, 3 cycle और 3 cycle कंटिन्यू करो, क्योंकि AMH 3.5 इट इज ऑन हाई साइड विद PCOD, तो फिर अपने आप एग ओव्यूलेट नहीं होता है, तो मोस्ट ऑफ टाइम्स इट इज अनओव्यूलेटरी, तो आपको IUI और कंटिन्यू करना चाहिए। अच्छा, डोंट थिंक आई विल कंसीव ऑन माय ओन, यू शुड अंडरगो IVF, IUI अबाउट 3 to 4 cycles कराना चाहिए। और मैम अगर 2 बार IVF फेल हुए हैं तो फिर कितने बार और कर सकते हैं IVF तो कितने बार भी कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन द एज और AMH लेवल क्या है, कितना एज होना चाहिए? एज आई हैव टोल्ड यू 35 के बाद में एग कम हो जाते हैं, ओवेरियन रिजर्व कम हो जाते हैं उनमें, सो व्हाट इज AMH लेवल, उनका एज क्या है, उनका मेंटल कंडीशन क्या है, बहुत बार क्या होता है पेशेंट मेंटली थक जाता है करके, तो नाउ दे डोंट वांट टू टेक चांस, तो वो ऐसा कोई फिक्स नहीं इतने बारी करना उतने बारी करना, कितने बार भी कर सकते हैं। आई हैव सीन कोई एज आई टोल्ड यू, एक पेशेंट था 3 बार अबॉर्शन हुआ IVF के बाद में, 4 times ही कंसीव्ड, तो ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं, इतने बार ही कर सकते हैं, कितने बार भी कर सकते हैं। ओके, आई थिंक सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं, मैंने कलेक्टिवली बोला है। अभी एक और क्वेश्चन इसमें, आई कैन सी देयर आर चांसेस ऑफ सर्वाइवल कैंसर, ओवेरियन कैंसर ड्यू टू, नो, कुछ नहीं होता है, IVF की वजह से कोई कैंसर का चांस नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ इंक्रीज चांस नहीं है ओवेरियन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था, और बहुत सभी आई थिंक सभी IVF पेशेंट्स के लिए सभी को आंसर्स भी मिले, और बहुत अच्छी रीति से आपने एक्सप्लेन किया। साथ साथ मेडिटेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैम ने बताई कि इन सब में अपनी थॉट प्रोसेसिंग को चेंज करो, एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा जो मेडिटेशन है जिससे हम नया कुछ कर सकते हैं, तो उससे इजीली कंसीव हो सकता है या सक्सेस रेशो बढ़ सकता है। वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन सभी के साथ साथ हम मेडिटेशन को अगर ऐड करते जाएंगे तो हमारे IVF रेट भी बहुत अच्छे से सक्सेसफुल होगा। कुछ अनाउंसमेंट है कि कल का हमारा जो सेशन रहेगा वो रात को 8 बजे से 9 बजे तक रहेगा, और कल का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ डिफिकल्ट इनफर्टिलिटी केसेस। हमारे स्पीकर रहेंगे डॉक्टर दर्शन सर, जो डायरेक्टर है ऑफ ग्लोबल IVF सेंटर राजकोट से। तो कल का हमारा सेशन फिर से IVF
स्पेशलिस्ट के साथ रहेगा। आज का सेशन भी बहुत अच्छे से हम सभी को गाइड करने जैसा था। सभी पेशेंट्स को बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन मिला है। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं। Yeah, you can ask me personally also, no problem. I will try to help in maximum possible way. जो भी अच्छे से हेल्प कर सकते हैं I will do it and I will be more than happy. अगर इसमें से एक भी टिप आप अपनी लाइफ में यूज करके आपको यूज हुआ तो I will be more than happy. I will be always ready to help you. Okay. Yes, thank you so much, ma'am. Being Thank with you us. everybody. सभी पेशेंट्स का, पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत थैंक यू कि आप सभी सेशन में जुड़े। सेशन एंड करने से पहले हम 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे, उसके बाद सेशन को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। ओम शांति। याद कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। दिल में ही दिल की उससे यूं बात कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। बरसात कीजिए, दिल में ही दिल की उससे यूं बात कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। शांति के सुमन से मधुबन ये मन का महके, सुख शांति के सुमन से मधुबन ये मन का महके, चैनो मन की चिड़िया चित के चमन में चहके, सबके लिए दुआएं दिन रात कीजिए, सबके लिए दुआएं दिन रात कीजिए, दिल में ही दिल की उससे
को प्यार से याद कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए, याद कीजिए।